Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. Hope everyone is doing really well. So today I wanted to share about Pakistan. Yes, that's the most recent, question I've been asked. That how was Pakistan? Because अभी recently मैं नवंबर में पाकिस्तान होकर आई हूँ और since I have returned, it was the most memorable, most incredible trip I ever had. So I thought of sharing, some highlights from the trip and my personal experience with you all. So आज जो कुछ भी मैं अपने ट्रिप के बारे में या पाकिस्तान कंट्री के बारे में शेयर करूँगी, that's totally coming from bottom of my heart and soul. So let me share few highlights with you all. इतनी वार्मथ है, लोग बहुत प्यार से बोलते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या सोच है, या आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो, वहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हो। कभी इंडिया ना आना चाहोगे तो आप प्लीज़ अपने व्यूज़ शेयर करें। अगर आप इंडिया वाले अगर वीज़ा ओपन करते हैं तो मेरे ख्याल से सारा पाकिस्तान जाना चाहेगा। मैं अमृतसर देखना चाहता हूँ, मैं जलंधर देखना चाहता हूँ, मैं दिल्ली लाजमी आना चाहता हूँ, और मैं अभी भी जब कभी एंटरटेन होना हो मैं दिल्ली की जो मूवीज़ हैं वो ढूंढता हूँ। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज और वो मूवीज़ बहुत पसंद आती हैं, जिस वजह से दिल्ली नज़र भी आ जाए। तो हम सब आना चाहते हैं वहाँ पे। अक्सर जो हमें मीडिया दिखाती है या जो हम मीडिया में देखते हैं और जो हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है। कुछ ऐसा ही मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला एंड जो मेरे साथ 5 फीमेल ट्रैवलर्स थे, we experienced a similar thing. The trip was organized by the company called Visit to Pakistan. They are based in New Zealand and in Pakistan as well. So, the journey started from India. Amritsar se we crossed the Wagah border. The moment we crossed the border, the kind of a welcome we got from Pakistan people, even at the immigration office, was, like beyond expectation. There was the entire team from this company called Visit to Pakistan, and we were treated with flowers, and they were like जैसे वो दिखाते ना like कि कोई celebrities आए हैं, and then they were like photos going around. We had a private guide, we had one photographer with us, one coordinator, and the van was waiting for us. The organizers were waiting for us. So it was suddenly we forgot the entire tension, और जितने हम थके हुए थे वो सब भूल गए। वहाँ की जो ज़ुबान है, अगर मैं सम अप करूँ एंटायर ट्रिप को या वहाँ के लोगों को, सो इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड पंजाबी, द एटीट्यूड वाज लाइक जी आया नो. And the other thing I really wanted to say about Pakistani people, that khide mathe. Khide mathe is basically they are very easygoing people, बहुत प्यार से और बहुत calm. That was my first experience. The moment we were at the immigration office, with the paperwork and everything. Of course, it was a time-taking process, but very smoothly done and बहुत ही welcoming. And this is whatever I'm sharing really what I actually felt. So let's talk about some highlights and the जो बहुत memorable चीज़ें थी मेरे लिए. First one was जो वहाँ की हिस्ट्री है, जो पार्टीशन से पहले की हिस्ट्री है, और जो चीज़ें वहाँ के जो हिस्टोरिकल गुरुद्वाराज हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, सो दैट वाज एडेड इन आवर आइटनरी. सो वो एक for me it was a dream come true, because since my childhood somewhere I was really connected with Pakistan. Reason being because my ancestors are from Pakistan, my in-laws are from Pakistan. So or bachpan mein like I remember my parents used to watch Pakistani dramas. Ek aata tha Dhoop Kinare, Tanhaiyan. So I remember the calmness, the simplicity of, and then the partition stories, of course. Something which really touched my heart was the hospitality. मैंने बहुत सुना था because मेरी मम गई हुई है पाकिस्तान, my mother-in-law has been there, काफ़ी फैमिली के मेंबर्स गए हुए हैं, और मैंने सबसे सुना था कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी और वहाँ के लोग आपको बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं. But you know what? When you experience it,
इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट. सो जो मेहमान नवाजी थी, जो वहाँ के लोग इतने प्यार से बात करते थे, तो मुझे लगता था कि कोई इतना प्यार मोहब्बत भी, इज़ इट लाइक रियली पॉसिबल, कोई इतना प्यार मोहब्बत भी दिखा सकता है? दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट. एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग, द मोमेंट दे गेट टू नो कि आप इंडियन हो, I think somehow the warmth gets doubled up, you know, like वो कितनी बारी हमारे साथ ऐसे हुआ कि काफ़ी जगह से वो they were like कि we don't want to charge you क्योंकि आप हमारे मेहमान हो, आप हमारी कंट्री में विज़िट करने आए हो, so we're not gonna charge you. The hotel we stayed in was 5-star hotel, Nishant Hotel in Lahore. एंड वहाँ का जो स्टाफ जैसे हमें ट्रीट करता था, जितने भी फेलो ट्रैवलर्स थे, जब हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे या छोटी छोटी जो डिटेल्स का ध्यान रखा जाता था, वो बहुत ही लाइक यू नो इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग कि इतनी आपको जब तवज्जो मिलती है. सो दैट वाज वन थिंग आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, द हॉस्पिटैलिटी. अब बात करते हैं वहाँ की ज़ुबान की, उर्दू. मुझे शुरू से उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जब आप वहाँ जाके वहाँ लाइक यू नो लाइव सुनते हो, यू नो, द मिक्स ऑफ उर्दू एंड पंजाबी वाज सो ब्यूटीफुल. मुझे शौक़ पड़ा बिकॉज़ वो जो बचपन में पाकिस्तानी ड्रामास देखे थे या जो भी कभी टीवी पे ज़ुबान सुनी थी, दैट वाज सो पोएटिक, सो रिलैक्सिंग. इतनी प्यार मोहब्बत से वो लोग बात करते हैं माशाल्लाह. जो कुछ इतने प्यारे वर्ड्स होते हैं. एंड यू नो when I got this opportunity, जब मुझे पता लगा कि मुझे यू नो लाइक माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू एंड आई एम एक्चुअली विजिटिंग पाकिस्तान, सो मैंने बहुत कोशिश की कुछ ऐसे वर्ड्स सीखने की जो मैं लाइक सो आई कैन बी पार्ट ऑफ देयर कल्चर. सो ज़ुबान वॉज लाइक विनिंग ब्यूटिफुली. लाइक जैसे वो लोग इतने प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. अनदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है, वॉज पाकिस्तान सेफ? मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि स्पेशली आप इंडिया से थे, वॉज इट सेफ? बहुत सेफ, स्पेशली क्योंकि उन लोगों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर ये पता लग जाता आप इंडियन हो, तो आई थिंक पता नहीं क्या था कि वो मेहमान नवाजी ऐसे लगता था कि लाइक खुले दिल से आपको लाइक इतना प्यार मोहब्बत मिलता था. एंड बाय द ऑर्गेनाइजर्स वी हैड द यू नो द प्रोटोकॉल. काफ़ी जगह पे हमारे साथ वहाँ की जो पुलिस थी वो हमारे आगे आगे यू नो दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस, सो वी फेल्ट थॉरली सेफ, रियली सेफ ओवर देयर. मेहमान नवाजी के साथ अब बात करते हैं वहाँ की फूड इंडस्ट्री की. ऑफ कोर्स वी ऑल नो पाकिस्तानी फूड, स्पेशली जो वहाँ का स्ट्रीट फूड है, दैट इज़ वर्ल्ड फेमस. अनफॉर्चुनेटली आई एम अ वेजिटेरियन, तो मुझे मौका इतना नहीं मिला. मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स थे, जब उनको पता लगा कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, दे वर लाइक ओ यू विल गेट टू ईट छपली कबाब एंड वहाँ का लाहौरी चिकन, ये वो. देन आई सेड सॉरी, आई एम वेजिटेरियन. सो इवन डिस्पाइट बीइंग वेजिटेरियन, बहुत ही उम्दा खाना. और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बात करना चाहूँगी. सो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, यू नो, जब हम लोग लंच साथ में करते थे, बिकॉज एज आई सेड कि गाइड, यू नो, फोटोग्राफर, कोऑर्डिनेटर, सब लोग, पूरी टीम हमारे साथ होती थी. सो मैंने एक चीज़ नोट की कि यू नो व्हेन वी वर हैविंग, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स, यू नो, जितने भी हम लोग 5 लोग थे, एंड सो ऑल ऑफ अस वर वेजिटेरियन. लेकिन मुझे ये मालूम था कि ऑफकोर्स कि वहाँ पे तो लाइक जो सुबह नाश्ता होता है उसमें भी यू नो कीमा, गोश्त, एंड दाल में भी गोश्त डलता है, बिकॉज आई डिड सम रिसर्च अबाउट इट. So what I noticed that everyone, even they were having vegetarian food. So मैंने उनसे पूछा कि like I really want to know कि of course आप लोग तो इतने शौकीन हो, you know, like non-veg खाने के, how come you all are having vegetarian? So the answer really touched my heart. So they said कि आप हमारे मेहमान हो, और अगर आप you know जो वेजिटेरियन खा रहे हो, हम आपके सामने बोटी कैसे तोड़ सकते हैं. दे सेड कि ये भी नहीं है कि शायद अभी अब आपके साथ हम वेजिटेरियन खा रहे हैं, हम घर जाके शायद दोबारा खाएं या न खाएं, लेकिन आपके साथ अगर आप वेजिटेरियन खा रहे हो, सो वी वांट टू रिस्पेक्ट दैट. सो दैट वाज अगेन यू नो समथिंग आई was really overwhelmed by the treatment, the hospitality, as I said before, was next level. Let's talk about their art and music.
अगेन वर्ल्ड फेमस वहाँ की कवालीज, पोएट्स, बुल्ले शाह की दरगाह जाने को मिला. दैट वॉज लाइक मेरे को आई रियली फॉलो बुल्ले शाह. एंड एज आई सेड कि जो गुरु नानक देव जी की वहाँ पे हिस्ट्री है, सो एवरीथिंग वॉज लाइक वेरी ओवरवेलमिंग. कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लाइक इतनी क्लोजली हिस्ट्री देखने को मिलेगी. और जैसे ये कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं. सो मैंने ये वहाँ जाके पूछा कि ये क्यों कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं. सो बेसिकली वहाँ पे मुझे ये समझाया गया कि लाहौर में इतनी हिस्ट्री है बिफोर द पार्टीशन. इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए, इसलिए ये कहा जाता है कि आपने लाहौर नहीं देखा तो आप यू हैवन लाइक आप बस बेसिकली इफ आई ट्रांसलेट कि आपका बर्थ ही नहीं हुआ है. सो आई थिंक आई वॉज द फॉर्चुनेट वन अलॉन्ग विद दी अदर्स कि मुझे लाहौर देखने का मौका मिला. वहाँ का स्ट्रीट फूड एंड दी आर्ट एंड म्यूज़िक, हमने बड़े सारे कवाली शोज़ देखे. स्पेशली बुल्ले शाह दरगाह जब हम गए थे वहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमारे लिए वो कव्वाली का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था. सो अगेन a totally unforgettable experience. फैशन के बारे में बात करते हैं. ऑफ कोर्स पाकिस्तानी सूट्स वर्ल्ड फेमस हैं, वहाँ के जो फैशन ब्रांड्स हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं. जब मैं पाकिस्तान में थी मुझे इतने लोगों के मैसेज आए पर मीट और इन पाकिस्तान कैन यू गेट सम पाकिस्तानी सूट्स. आई विश आई कुड, बट येस मुझे औरों के साथ मौका मिला वहाँ पे पाकिस्तानी सूट्स की शॉपिंग करने का. एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग वन. This is gifted by Jeet Kaur, who was one of the traveler in the group, and I'll be talking about her in the later part. So thank you Jeet auntie for the beautiful Pakistani suit. So yes, of course वहाँ का fashion was simplicity but very elegant, and then that was another highlight of the trip. अब जो मेरे लिए सबसे अहम था from the entire trip and very close to my heart, मुझे रावलपिंडी जाने का मौका मिला. और रावलपिंडी में जो पार्टीशन वाले जो घर हैं, एंड देन यू नो व्हाट, आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला अपने एंसेस्टर्स के घर जाने का, जो मेरे इन लॉज हैं और जो उनके मेरे हस्बैंड के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो पाकिस्तान से थे. उनका जो पार्टीशन से पहले का घर था, मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला. वहाँ पे जो अब थर्ड जनरेशन उस घर में रह रही है, वहाँ उनसे मिलने का मौका मिला. मैं इस पूरी स्टोरी का एक अलग एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिकॉज इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी एंड द फैमिली बैक इन इंडिया. बिकॉज और जिस तरीके से उन लोगों ने वेलकम किया, जब मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया से हूँ और जो यहाँ पे जिनका ये घर था वो मेरे हस्बैंड के ग्रेट ग्रैंडफादर थे. सो the woman who was living there, she was literally in tears. We hugged each other as if like पता नहीं कितने times हम एक दूसरे को जानते थे. So इस पे I'll be releasing the entire story because for me this was the most important part of my this trip. So हाथ जोड़ कर मेरा thank you to the organizers क्योंकि they made it possible कि वो एड्रेस हमें मिले. और यकीन मानिएगा जब हम वो घर ढूंढ रहे थे रावलपिंडी में, इतना आसान भी नहीं था वो पुराने घरों में वो एड्रेस ढूंढना एंड ऑल दैट. सो मेरे साथ गाइड एंड फोटोग्राफर थे, बाकी लोग गाड़ी में वेट कर रहे थे बिकॉज तंग गलियाँ थी. सो जब वहाँ पे जैसे लोग थे उनसे हम पूछ रहे थे कि उनको ये डू दे नो अबाउट दिस एड्रेस. सो उनको जब ये पता लगा कि मैं इंडिया से हूँ और ये पार्टीशन से पहले का घर मैं विज़िट करने आई हूँ, तो ऐसे था कि जैसे वो दे जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट पॉसिबल कि मैं वो घर ढूंढ पाऊँ, मैं उन लोगों से मिल पाऊँ, और ये हुआ. सो आई विल बी शेयरिंग अबाउट दिस वेरी सून विथ यू ऑल. Now, of course, I want to say big thank you जिन लोगों के साथ मैंने travel किया. There were 4 fearless senior citizen women travelers with me. जब मुझे पता लगा कि कि जब ग्रुप बना तो कुछ 15 लोग थे, 15 लोगों से कुछ रह गए 5 लोग जिसमें आई वॉज वन ऑफ देम. सो मेरे लाइक ऑफ कोर्स दे ऑल वर सीनियर सिटीजन्स एंड देन आई वाज लाइक कि मे बी जो ट्रिप की एनर्जी होएगी वो स्लो होएगी, थोड़ा सीरियस माहौल होएगा, बट नो, इट वाज जस्ट द ऑपोजिट. I would really want to say to all the 4 women who I traveled with, Jeet Kaur, Balbir Kaur,
you have inspired me to next level. You know, the energy, काफ़ी जगहें ऐसी होती थी जहाँ पे वो नहीं जा पाते थे, उनको व्हील चेयर्स की ज़रूरत पड़ती थी, बट दे नेवर गेव अप, यू नो, दे वर लाइक on to it. So I have learned a lot from you all. They were fearless. That was really amazing, you know, that, and they were powerful. They had the intention to travel, and they had that, you know, एक वो जज्बा और passion. So I want to say big thank you to all the fellow travelers. मैंने बहुत सीखा है आपसे, and I wish मैं आप सबके जैसे बन पाऊँ. और अब जो फाइनल और तहे दिल से मेरा थैंक यू है वो है द कंपनी कॉल्ड विजिट टू पाकिस्तान. नवीद हमीद जी, शाहिद हमीद जी, along with the entire crew, from the photographer, from the guide, from जो coordinator थे, सबको तहे दिल से थैंक यू है. And people who are watching, I just want to tell you that बहुत जल्दी we are organizing one बैठक about, you know, the entire experience that will be in Auckland, New Zealand. And if you are interested and if you are from Auckland and if you are keen to attend that, kindly share your details with me and I'll be inviting you for this, you know, the बैठक we're gonna have very soon. Last में I really want to say to all the वो जो वहाँ की पाकिस्तान की आवाम है, जितना प्यार आपने दिया, जितनी मोहब्बत आपने दी, आपकी मेहमान नवाजी, सलाम है आपकी मेहमान नवाजी को. सो अभी के लिए आई रियली वांट टू से बिग थैंक यू, ऑर्गेनाइजर्स, फेलो ट्रैवलर्स, माय फैमिली, ईच एंड एवरीवन हु बिकेम पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड टू ऑल ऑफ यू जो लोग बहुत टाइम से मेरे से पूछ रहे थे कि परनीत, how was Pakistan? So I want to say I cannot wait to visit again and I will. माशाल्लाह मुझे शायद दोबारा ज़रूर मौका मिलेगा आने का. Signing off, Parneet Sani from Soul Talk by Parneet Sani.